Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today I'm continuing on my previous video, which was on mandibular fracture. So earlier I taught you about what is fracture and I started with the classifications of the mandibular fracture, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा Denman's and Natwick's classification के बारे में. So this was a quick revision. Now I'll be talking about another classification, that is second favorable and unfavorable fracture. Okay, so this is also a classification of the fracture. So basically ये बहुत tough होता है समझना. It is not an easy thing. मतलब बहुत लोगों को ये easily समझ नहीं आता है, but I'll try to explain you it in a very easier way. So before starting with this topic, I'll make you uh, know about two points that are very important to understand this classification. And yes, this classification usually comes in short note of about 5 marks or something in university exams. So let's get started. Okay, so to understand about what is favorable and unfavorable fracture means, so it is very important classification of the mandibular angle and body fracture. ओके, सो जो बॉडी और एंगल फ्रैक्चर्स होते हैं उन्हीं को हमने क्लासिफाई किया है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल टर्म में. ठीक है, तो इन्हीं टर्म को समझना जरूरी है बस. सो इनको समझने से पहले दो चीजों को दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रैक्चर लाइन, the direction of the fracture line, and the effect of the muscle action on the fracture segments. Okay, for example, if I tell you, if this is a bone and this is a fracture line. Okay, so what is the direction of the fracture line? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. दूसरा, कोई भी फ्रैक्चर लाइन जब आती है तो पर्टिकुलर बोन में दो सेगमेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि सेगमेंट नंबर 1 एंड सेगमेंट नंबर 2. ओके, सो व्हाट इज द effect of muscle action on the fracture segments or fractured fragments? So कोई भी बोन जो होती है हमारी बॉडी में, it is particularly attached with certain muscles. Okay, तो वो मसल कुछ एक्शन exert करती है on the bone. ठीक है, तो जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो फ्रैक्चर होने के बाद बोन के दो फ्रैक्चर सेगमेंट्स हो जाते हैं. ठीक है, तो उन फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स पे उस मसल का क्या एक्शन होगा या क्या इफेक्ट होगा, ये सेकंड पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है. और पहला पॉइंट, जो फ्रैक्चर लाइन अकर होगी उसका डायरेक्शन क्या है. ठीक है, बस ये दोनों पॉइंट हमें दिमाग में लेके चलना है और इसके बाद हम फेवरेबल और अनफेवरेबल समझ सकते हैं. ओके, बिफोर बिगिनिंग अप लेट मी इंट्रोड्यूस हेयर. हमने देखा कि ये फेवरेबल और अनफेवरेबल फ्रैक्चर कुछ नहीं बट एंगल और बॉडी फ्रैक्चर को ही हमने क्लासिफाई किया है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द एंगल फ्रैक्चर हेयर. Okay, I'm taking an example of the angle fracture. So मैंने angle fracture को classify किया as vertical favorable, vertically unfavorable, horizontally favorable and horizontally unfavorable. Okay, अब आप बोलोगे कि favorable and unfavorable तो अभी समझ में आया नहीं, and ये vertical और horizontal क्या है. ठीक है, तो पहले हम एक एक टर्म समझ लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा. तो सबसे पहले let me make you clear about what is favorable. Okay, so let's write here favorable. Okay, favorable is equals to no displacement. ओके, ये दिमाग में रख लो. कहीं भी अगर आप फेवरेबल सुन रहे हो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है. अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है. सो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोन ड्रॉ की थी और यहाँ पे एक फ्रैक्चर लाइन ड्रॉ की थी, तो फ्रैक्चर होने के बाद दो सेगमेंट्स हो गए थे. ओके, तो अब ये दो सेगमेंट्स अगर अपनी प्रॉपर प्लेस पे हैं लाइक दिस, then that means there is no displacement. But if these two fracture segments are kind of displaced like this, then that means there is displacement. Okay, तो अगर displacement नहीं है, then that means that type of fracture line is favorable. ठीक है, तो favorable का सिर्फ इतना मतलब है, अगर displacement नहीं है इसका मतलब favorable fracture line. Similarly, unfavorable, इसका opposite होगा, that means there will be displacement. Okay, so that means this is unfavorable
and this is favorable. Okay. So now let me write down the definition here so that it would be easy for you to understand. So favorable के लिए मैं लिख देती हूँ what is favorable. Okay. When the muscle pull resist the displacement of fractured fragments, then the fracture line is called as favorable. समझ में आ गया? अब मैंने यहाँ पे मसल पुल को भी इंसर्ट कर दिया, तभी मैंने आपसे कहा था इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो चीजों को दिमाग में रखना जरूरी है। सबसे पहले कि फ्रैक्चर लाइन की डायरेक्शन क्या है और दूसरी कि जो मसल अटैच है बोन से उसका क्या इफेक्ट होगा फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स पे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बोन के फ्रैक्चर हो जाने के बाद अगर मसल की टेंडेंसी होती है, ठीक है, ये पॉइंट आप दिमाग में एक और रख लो, यहाँ पे मैं स्टार बना दे रही हूँ कि muscle tends to pull fractured bone towards its point of origin. Okay? इसको समझना थोड़ा ट्रिकी है बट मैं बताती हूँ आगे फिगर से। ओके, कोई भी मसल जो बोन से अटैच है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले आपको ये समझ में आ गया कि फेवरेबल मतलब क्या है, नो डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड अनफेवरेबल मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये डेफिनेशन थी फेवरेबल की, और डिस्प्लेसमेंट में आप वही लिख दो इसका अपोजिट कि व्हेन मसल पुल cannot resist the displacement of fracture or basically distracts the fracture fragments. Okay, let me write here. Each other, then it is unfavorable fracture line. Okay, so this is quick explanation. Okay, ये बहुत ही जरूरी points हैं. So this is one point, this is second point, this is third point. Okay, so these 3 points are very important and इनको हमने derive किया है अपने इन 2 points से जो कि बहुत important था, ठीक है, किसी fracture line की direction और उसका muscle action, ये मुझे समझ, तो आप लोगों को समझ में आएगा आगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है एंगल फ्रैक्चर का, जिसको मैंने क्लासिफाई किया है वर्टिकली फेवरेबल, वर्टिकली अनफेवरेबल, हॉरिजॉन्टली फेवरेबल एंड हॉरिजॉन्टली अनफेवरेबल। सो मैंने आपको मतलब बता दिया है दो टर्म का, दैट इज फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। ओके, सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज वर्टिकल एंड व्हाट इज हॉरिजॉन्टल। ओके, सो व्हाट इज वर्टिकल? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबको पता है वर्टिकल क्या होता है, कोई भी चीज अगर ऐसे रखी है देन दैट इज वर्टिकल, एंड कोई भी चीज अगर ऐसे रखी है देन दैट इज हॉरिजॉन्टल। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट हॉरिजॉन्टल राइट नाउ। सो वर्टिकल इज समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ यहाँ पे वर्टिकल क्यों यूज हुआ है? सबसे पहले ये फिगर मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो इस फिगर को मैंने मैंडिबल बोन का फिगर है उसको मैंने ऊपर से ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, यानी कि जब भी आप मैंडिबल बोन को ऊपर से देखोगे, फॉर एग्जाम्पल यू आर सीइंग लाइक दिस, दिस इज योर आई and you're watching it like this. Okay, तो आपको ऐसा बोन मैंडिबल का दिखेगा। तो इस व्यू में, वर्टिकल व्यू में ऊपर से आप मैंडिबल को व्यू कर सकते हो। तो अभी हम पढ़ेंगे इतने पार्ट के बारे में, इस फिगर से और इस फिगर से। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज अ मैंडिबल बोन which you are seeing from top view. Okay, vertical aspect. ये जो पिंक कलर का ड्रॉन है, दिस इज योर मीडियल टेरागोइड मसल।
ओके। सो मीडियल टेरेगोइड मसल का जो ओरिजिन होता है ये मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी रीजन के पास में से होता है, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे मैंने मैक्सिला नहीं बनाया है तो आपको इसकी ओरिजिन नहीं दिख रही, लेकिन इसका इंसर्शन होता है अराउंड एंगल ऑफ द मैंडिबल, समवॉट हियर, ओके। सो यहाँ पे इसका इंसर्शन है एंगल पे, सो ओरिजिन नहीं ड्रॉन है। सो दिस इज द मसल, okay, so this muscle is kind of inserted at the angle of the mandible. Okay, now here I had drawn the fracture line in the yellow color. You can see the fracture line. So this fracture line, अब हमें इस fracture line और इस muscle इन दो चीजों को साथ में लेके चलना है, तभी हमें समझ में आएगा favorable and unfavorable fracture का classification, ठीक है। So this fracture line which I had drawn is kind of running, कहाँ से कहाँ ये run कर रही है, that is important, okay। So before beginning with this, we know that this is the lingual side क्योंकि यहाँ पे टंग होती है, and this is the buccal side, है ना, क्योंकि यहाँ पे चीक होता है। So किसी बोन के भी दो साइड्स होते हैं। If I talk about this side, this would be the buccal cortex, and if I talk about this side, this would be the lingual cortex. Okay, so this particular fracture line, if I zoom out and if I show it, this fracture line is kind of running fracture line directs from buccal cortex to lingual cortex obliquely backward. Okay. Now, very important to note is that this fracture line is running from buccal cortex to lingual cortex. Okay. This is very important. Now, if you see, this is the fracture line. So this is running like this. Okay. This is running somewhat like this from the buccal cortex to the lingual cortex, and that too directing obliquely, है ना। सो क्योंकि ये obliquely डायरेक्ट कर रही है और बकल कॉर्टेक्स से लिंगुअल कॉर्टेक्स की तरफ है, इसकी वजह से होता क्या है, somewhat यहाँ पे एक ये पर्टिकुलर बोन सेगमेंट का पार्ट आ जाता है, ठीक है। इफ दिस इज अ फ्रैक्चर लाइन, दिस येलो पार्ट, देन ये एक फ्रैक्चर सेगमेंट 1 हो गया एंड ये फ्रैक्चर्ड सेगमेंट 2 हो गया, है ना। तो फ्रैक्चर सेगमेंट 1 से अटैच है या मोस्टली अटैच है ये दिस मीडियल टेरेगोइड मसल, है ना। सो ये मीडियल टेरेगोइड मसल की टेंडेंसी क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि कोई भी मसल जो अटैच होती है यहाँ पे, है ना, वो tends to pull the fractured segment or the bone towards its point of origin, है ना। तो यहाँ पे दिस इज द मीडियल टेरेगोइड मसल, इसकी ओरिजिन है मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी के अराउंड, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर फ्रैक्चर सेगमेंट 1 को कोशिश करेगा पुल करने की ऑन दिस डायरेक्शन, ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, जो कि यहाँ पे शोन नहीं है, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं कर पा रहा, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि फ्रैक्चर लाइन कुछ इस तरह से रन कर रही है फ्रॉम बकल कॉर्टेक्स टू लिंगुअल कॉर्टेक्स कि यहाँ पे फ्रैक्चर नंबर 2 सेगमेंट का एक बोनी सेगमेंट, कह सकते हैं ये ट्रायंगुलर पार्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक्ट कर रहा है एज अ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द फर्स्ट फ्रैक्चर सेगमेंट, और ये इसको इस साइड नहीं डिस्प्लेस होने दे रहा, है ना। क्योंकि ये बोनी पार्ट यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये किस तरह की फ्रैक्चर लाइन होगी और ये किस तरह का फ्रैक्चर बेसिकली हमें बता रहा होगा। So this fracture line is kind of favorable fracture line क्योंकि हम इसको व्यू कर रहे हैं वर्टिकल से, so this is vertically favorable fracture line, ठीक है। So let me write down here. So this is vertically favorable fracture. I hope it is clear. आपको वर्टिकली पता है क्यों बोला, क्योंकि आप वर्टिकली देख रहे हो, फेवरेबल पता है क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है और फ्रैक्चर तो है ही, ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज अ वर्टिकल फेवरेबल फ्रैक्चर। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट,
नाउ विल बी कमिंग विद द सेकंड, दैट इज वर्टिकली अनफेवरेबल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है, व्हेन द मसल पुल रेजिस्ट द sorry, this was favorable, this is unfavorable. When the muscle pull distracts the fragment segments away, fracture segments जो दो हुए हैं वो एक एक जगह पे नहीं रहे और अलग अलग डिस्प्लेस हो जाए, then that particular fracture line is unfavorable, and वो fracture क्या हो जाएगा, unfavorable fracture. Okay, so now to understand the vertically unfavorable fracture, this figure I had drawn, let's see. So this is the medial pterygoid muscle. Okay, similarly like previous picture, and this is the yellow में जो मैंने बना रखा है ये है फ्रैक्चर लाइन, ठीक है। अब इस फ्रैक्चर लाइन को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। So this fracture line is directed from which direction? From lingual cortex to buccal cortex. Obliquely backward, ठीक है। तो ये भी ऑब्लिकली बैकवर्ड ही जा रही है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, लिंगुअल से, और फिर बैकवर्ड पे जा रही है। सो दिस इज गोइंग लाइक समवॉट लाइक दिस, है ना, ऑब्लिकली बैकवर्ड बट फ्रॉम द लिंगुअल टू द बकल कॉर्टेक्स। सो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है, लिंगुअल कॉर्टेक्स से बकल कॉर्टेक्स, ओके। और प्रीवियसली हमने क्या देखा था, वर्टिकली फेवरेबल फ्रैक्चर में कि जो फ्रैक्चर लाइन थी वो बकल कॉर्टेक्स से लिंगुअल कॉर्टेक्स जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रैक्चर लाइन है वो लिंगुअल से बकल कॉर्टेक्स जा रही है। सो दिस इज द रीजन व्हाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल पा रहा है मैकेनिकली, जिस तरह का वो ट्रायंगुलर ऑब्स्ट्रक्शन मैंने आपको दिखाया था। लेट्स स्टडी द बोथ फिगर्स टुगेदर। So if you see both the figures together, this was the triangular obstruction that was offered by this fracture segment 2 to the one fracture segment. So the first fracture segment displaced नहीं हुआ था because of the pull of the muscle, medial pterygoid muscle. तो सिमिलरली यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है फर्स्ट फ्रैक्चर सेगमेंट को, ठीक है, फ्रॉम द सेकंड फ्रैक्चर सेगमेंट को, क्योंकि फ्रैक्चर लाइन कुछ इस तरह से डायरेक्टेड है, इस वजह से ये पर्टिकुलर पार्ट डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, सो इसलिए मैं इसको लिखूंगी एज so this one is the so this is your vertically unfavorable fracture. Okay, I hope it is clear. So we are done with the 2 point here, that is your vertically favorable and vertically unfavorable. So now we'll be dealing with this part, that is your horizontally favorable and unfavorable. So I hope I am going through it and you are also following it कि favorable और unfavorable fractures क्या हैं, favorable का मतलब क्या है, unfavorable का मतलब क्या है, vertically क्या कहना चाह रहा है term, और हॉरिजॉन्टली क्या कहना चाह रहा है। तो हमने वर्टिकली पढ़ लिया है, अब हम हॉरिजॉन्टली पढ़ेंगे। सो व्हाट इज हॉरिजॉन्टली, सो जैसे कि हमने दो फिगर्स ऊपर देखे वर्टिकली, वैसे ही अब हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टली मीन समथिंग लाइक दिस। सो नाउ वी आर व्यूइंग द मैंडिबल फ्रॉम द साइड एस्पेक्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टली हम मैंडिबल को व्यू कर रहे हैं। तो हमें जो फ्रैक्चर लाइन है वो कुछ इस तरह से दिखेगी, कैसे, फ्रॉम द एल्वियोलर मार्जिन टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल हमें फ्रैक्चर लाइन रन करते हुए दिखेगी, ठीक है। तो लेट्स स्टडी अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फेवरेबल, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टली फेवरेबल पढ़ लेते हैं हम। So this is a picture, okay, you can see. Now what is happening here,
यहाँ पे जो फ्रैक्चर लाइन है, द फ्रैक्चर लाइन इज पासिंग फ्रॉम द एल्वियोलर मार्जिन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ से डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्रैक्चर लाइन जा रही है फ्रॉम द एल्वियोलर मार्जिन टू द inferior border of the mandible. So let me write down here. So this fracture line is passing alveolar margin downward and forward. Okay. सो फ्रैक्चर लाइन का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही कहा था, और मसल की एक्शन का पुल है ना। तो हमने यहाँ पे देखा क्या इंपॉर्टेंट हमें मिला, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। फ्रैक्चर लाइन का डायरेक्शन कुछ इस तरह से यहाँ पे है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, है ना। तो अब मसल देख लेते हैं। सो दिस इज द मसल, medial pterygoid muscle. Oh, sorry, medial pterygoid muscle was in that case. Now here we are viewing from the horizontal aspect. तो यहाँ पे हमें masseter muscle दिखेगी। ओके, सो masseter muscle का इंसर्शन सिमिलर टू द medial pterygoid होगा एंगल ऑफ द मैंडिबल पे, बट इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द zygomatic प्रोसेस। तो ये it tends to pull this fracture segment 1 and fracture segment 2. So ये fracture segment 1 को टेंड करेगी पुल करने के लिए दिस डायरेक्शन में, है ना। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जहां पे फ्रैक्चर लाइन रन कर रही है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, इस केस में फ्रैक्चर सेगमेंट 1 का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिमिलरली यहाँ पे भी एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होगा बाय सेकेंड फ्रैक्चर सेगमेंट टू दी फर्स्ट फ्रैक्चर सेगमेंट, और वो कुछ इस तरह से नहीं डिस्प्लेस हो पाएगा। ठीक है, यहां से नहीं डिस्प्लेस हो पाएगा, रेजिस्ट करेगा, यहाँ पे एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। सो इस वजह से ये पर्टिकुलर फ्रैक्चर किस तरह का फ्रैक्चर हुआ, हॉरिजॉन्टली फेवरेबल फ्रैक्चर, है ना। आई होप इट इज क्लियर। वाई हॉरिजॉन्टली, क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं। फेवरेबल क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है फ्रैक्चर सेगमेंट्स का बिकॉज ऑफ द मसल पुल एंड फ्रैक्चर। Okay, now coming on to the second figure, you can see similarly यहाँ पे fracture line जो है वो कैसे पास कर रही है वो देख लेते हैं। So it is also beginning from the alveolar margin towards the inferior border of the mandible, but यहाँ पे fracture line पास कर रही है fracture line is passing downward and backward. ठीक है, this is important. Okay, downward and backward. So similarly हमने जब पहले देखा था तो दैट वाज डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, है ना, बट यहाँ पे डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड है। सो अब इससे क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि फ्रैक्चर लाइन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड जा रही है, इस वजह से यहाँ पे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल पा रहा है ना। फ्रैक्चर लाइन कुछ इस तरह से जा रही है पीछे, तो ये पर्टिकुलर फ्रैक्चर सेगमेंट 1 और फ्रैक्चर सेगमेंट 2, फ्रैक्चर सेगमेंट 1 वुड बी easily pulled because of the masseter pull in this direction because there is no obstruction here. यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल रहा एंड इट विल बी इजीली डिस्प्लेस। सो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाया भी है पिक्चर में। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। सो व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इट इज, we'll write here, sorry, this is horizontally unfavorable fracture, okay, of the angle. इसी तरह हम बॉडी को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। So I hope it is clear what is vertical and what is horizontal and what is favorable and unfavorable fracture. ठीक है, तो